I have one question for you. That is, since now we have already suspended IWT, Indus Water, and in response, they have suspended now the Simla Agreement. Now, what could be the possibilities due to this suspension of Simla Agreement that the Pakistan can undertake something similar operation like Kargil? First of all, you are talking of two issues, separate issues, and I'll tell you the answer to both. As far as Shimla agreement is concerned, and I explained to you that Pakistanis want to go back to the ceasefire line. Okay, all right. Okay. So they want to go back to the ceasefire line. It's an entirely different game. It has nothing to do with Kargil. And honestly, I don't want to say it very openly. What I am saying is that please think, if for so many years in all the wars that we have fought with Pakistan, we could not obliterate the military line. Now when the Chinese are behind them and they attack Kashmir, please think what will happen. It is not Kargil. That's one. Second part is about the Indus Water Treaty. There is a Chinese analyst, he's not really an analyst, he's a guy who's embedded in the Communist Party top leadership, a fellow called Dr. Victor Gao. He used to be the interpreter of Deng Xiaoping. He came on Indian televisions to make the point very categorically that don't underestimate China's partnership or China's backing to Pakistan. And he threatened very clearly, unequivocally. He said that if India does anything with the water, then you are in the middle, Pakistan is below, we are holding the, वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, they bring the water to ब्रह्मपुत्र, वहीं से ही इंडस भी आती है नीचे. सो कहने का मतलब ये है, देखिए, आई एम टॉकिंग नॉट एज अ, मतलब आई एम टॉकिंग एज ए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट. आई डू नॉट नो हु इज एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस, ऑनेस्टली. मुझे पता नहीं, इनकी सिक्योरिटी टीम अगर बहुत सोच रही होती तो ये भी सोच लेती कि 2019 में जब आप ये सब काम करेंगे, 370 हटाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा. या यही सोच लेते कि अगर इम्पैक्ट हुआ है तो हमें तैयारी करनी है उसकी. तो अब मैं इसके आगे आपके ओपन फोरम पे क्या बता सकता हूँ. मैं कहने का मतलब ये है कि ये एक हिंदुस्तान में, आई कैन टेल यू एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न, लेट मी से डाइग्रेस अ बिट ऑन फॉरेन पॉलिसी. मैं ये कह रहा था कि फॉरेन पॉलिसी में वी शुड टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ जियो पॉलिटिक्स, जो पहले नहीं थी हमारी फॉरेन पॉलिसी में. और वो अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है आज हमारे पास, हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हमारा नेबर चीन है, रशिया हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड है. चीन और रशिया जो दोनों हैं वो ऐसे जुड़े पड़े हैं दोनों, वो हटेंगे नहीं, बिकॉज देयर विजन्स आर अलाइंड फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. तो हमें उनके साथ होना चाहिए. वाई डू वी प्ले द जीरो सम गेम? फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज सेड 80 करोड़ लोग जो हैं दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन. तो वो ठीक है, आपने बोल दिया कि साहब हमारी $4 ट्रिलियन जीडीपी है. जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का सिर्फ मतलब ये होता है कि एक साल में आपकी गुड्स और सर्विसेज का जो आउटकम होता है, दैट इज योर जीडीपी. आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो जीडीपी ज्यादा होगी. पर कैपिटा इनकम देखिए ना आप, आपकी ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे कम है. फॉरगेट ब्रिक्स, वो जो पार्टनर कंट्री है उनमें भी कम है, आप देख लीजिएगा. मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत कुछ हम उनसे, चाइना से सीख सकते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. हमारी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुकी है आज, दैट इज द ट्रुथ. तो यू कैनॉट राइड ऑन द वेव ऑफ सर्विसेज कि हम टूरिज्म कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना कर रहे हैं, वो नहीं होगा उससे. हम आईटी सेक्टर कर रहे हैं, अच्छी बात है आप कर रहे हैं, बट आईटी सेक्टर इज द थर्ड industrial revolution. Please understand, the fourth industrial revolution, where there is a competition going on between China and US, it's about artificial intelligence, it is about emerging technologies, and that is where China is a leader. And there is plenty that the Russians are learning from Chinese. मिसाल के तौर पर Huawei 5G जो है वो आज रशिया में है, हमारे पास भी आई थी 5G. I spoke to the then secretary जो थी डिपार्टमेंट इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की, and she told me very categorically कि हमने 5G को टेक्निकल ग्राउंड्स में नहीं हटाया है. We couldn't find any fault on the technical grounds.
इट वॉज अ पोलिटिकल डिसीजन। तो मैं कहने का मतलब ये है कि देखिए, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, मेरे हिसाब से फॉरेन पॉलिसी आप अपनी बेहतर कर सकते थे। जियो पॉलिटिक्स की अपॉर्चुनिटी लेके आज भी आपके पास है। अभी आप ब्रिक्स में जा रहे हैं, बात करिएगा, उसको ठीक करिएगा। ये जीरो सम गेम छोड़ दीजिएगा। वो दुनिया नहीं मान रही है। आज दुनिया, आप देखिएगा 2030 में जो दुनिया बनेगी वो रियल दुनिया होगी 80%, बिकॉज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आपको शायद मालूम नहीं होगा, अफ्रीका के अंडर, अफ्रीका में there are 7 countries, 7 emerging technologies out of the 20 in the world which are on the African continent. तो हम क्यों नहीं कर सकते ये सब कुछ? अब आप कहेंगे कि साहब वो सिक्योरिटी कारण से हम इसको नहीं आने देंगे, उनका सामान नहीं आने देंगे, हम डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं करेंगे। अभी उनका वो आया हुआ है वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन बेटोंग, ही सिटिंग इन दिल्ली, चाइनीज़ का, और उनकी डिमांड ये है कि साहब आप डायरेक्ट फ्लाइट करिए। उसका क्या मतलब है कि जो आपका बिजनेस है, जो हमारे छोटे बिजनेस वाले हैं, वो डायरेक्ट फ्लाइट होगी तो वो आराम से आके काम कर सकते हैं वहाँ पे, कि वो सिक्योरिटी ग्राउंड है। अरे बाबा, सिक्योरिटी ग्राउंड है तो आप अपनी साइबर सिक्योरिटी अच्छी कर लीजिए। सब मुल्क यही कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है, इट इज़ पार्ट ऑफ ऑकस, बट ऑस्ट्रेलिया भी जो है उसने भी रियलाइज़ किया है कि मुझे सामान खरीदना है चाइना से। ट्रंप जो ही वॉज राइडिंग अ हाई हॉर्स, ही इज़ ऑल्सो कम डाउन। जब उन्होंने कहा है कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स नहीं देंगे तुम्हें, तो बात खत्म हो गई। फिर उनकी टर्म्स मान ली है ट्रंप ने। तो कहने का मतलब ये है, आप समझिए इस बात को। व्हेन आई से आप, दिस इज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रियलाइज दैट चाइना टुडे, यू आर नॉट इन अ कॉम्पिटिशन विद चाइना। यू शुड लुक एट कोऑपरेशन विद अ म्यूचुअल कोऑपरेशन, जिसमें आपका भी फायदा हो, उसका भी फायदा हो। आई एम नॉट सेइंग दैट उनका पूरा फायदा हो, बट देयर आर सो मेनी एरियाज, आई कैन लिस्ट 10 ऑफ देम, जहाँ हम दोनों काम कर सकते हैं, हमारा भी फायदा हो सकता है। तो पहले आप डायरेक्ट फ्लाइट तो खोल लीजिए। आई एम सॉरी, योर क्वेश्चन वाज समथिंग एल्स, आई डाइग्रेस्ड। उदय जाधव, नाउ वेलकम। सर उदय बात कर रहा हूँ। हाँ सर, एक सवाल है। आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज हुआ है, तो ये पॉज हुआ ऑपरेशन सिंदूर प्ले कब हो सकता है, किस सिचुएशन में प्ले हो सकता है? और दूसरी बात है, क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कुछ फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हुए थे क्या? कितनी सच्चाई है इसमें, जरा बताइए। अगर मैं आपको बताऊंगा कितने हुए हैं ना, तो सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो वो, तो उस बात को छोड़ दीजिए आप अभी फ़िलहाल। तो कहने का मतलब ये है, ये पॉज का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी साइड पॉज लिफ्ट कर सकती है। और मेरी सोच ये है कि पाकिस्तान करेगा, चीन से सलाह मशवरा करने के बाद। हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, को हमारे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो बोल रहे हैं, हमारे आई हर्ड आर फॉर्मर national security advisor and so many analysts in the country that Operation Sindoor was a very good thing and we should do more of these Operation Sindoors. It should be like mowing the lawn. आप बार बार करेंगे तो they'll be deterred. अरे बाबा, अगली बार करेंगे, it is full-fledged war because you have brought the threshold of war very low. What is this new normal? New normal का मतलब ये है, पहले जो मसला सीज फायर जब उठता था तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीमित होता था। अब आपने क्या कर दिया है, न्यू नॉर्मल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिक्लेयर किया है, दैट मीन्स नाउ यू विल हैव ड्रोन्स एंड मोर देन दैट यू विल हैव मिसाइल्स, ऑल मिसाइल्स एक्सेप्ट फॉर दोज मिसाइल्स विच हैव बीन लिस्टेड और प्रॉपरली एयर मार्क्ड फॉर द न्यूक्लियर रोल। बाकी बहुत सारी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बहुत सारी मिसाइल्स हैं। तो आप अब डीप टारगेटिंग कर सकते हैं, आप सिटीज़ को बर्बाद कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपने थ्रेशोल्ड कितना कम ले आए हैं आप उठाकर। इसका मतलब आप एक और भी काम करिए अब आप, जो सरकार नहीं सोच रही है। आप लिखिए अपने आर्टिकल में कि नाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर की एरियाज। हमारी बॉम्बे की रिफाइनरी, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमारी और वनरेबिलिटीज़ जो हैं, नेशनल वनरेबिलिटीज़, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दिस न्यू नॉर्मल। वो जिस दिन वो उठाएगा वो दूसरा। और इसमें क्या होता है हमारे मुल्क में, जब कोई चीज़ होती है 4-5 दिन के बाद, उसके बाद दिन द कॉम्प्लेसेंसी सेट्स इन कि चलो यार वो तो हो गया, बात रफा दफा हो गई। अब गेम तो अब शुरू हुआ है। तो आप उसको प्लीज़ अपनी एयर डिफेंस को, नाउ यू हैव अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली
along the Jammu and Kashmir and the right till the Gujarat, your entire population which is close to the border, you need to provide them shelters, underground shelters. Along with that, you have to protect all your vulnerabilities, because he has the reach to fire the missiles. नहीं भी है तो उसको चाइना दे देगा. चाइना का फायदा है इसमें. चाइना को आपसे लड़ाई नहीं लड़नी है. चाइना की वो आपको बराबर समझता ही नहीं है. उसकी जो बराबरी है वो अमेरिका है, आप नहीं है. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. Vishwas sir, and after that you. आपने ये कहा कि आखिर कश्मीर इज इन डेंजर नाउ. उसके पहले आपने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल अब वो ख़त्म हो गया है. और 370 की आपने जो बात की, तो 370 हटने के बाद वो पूरा कश्मीर, वहाँ का जो पीक ऑफ हिमालय या जिसको हम सियाचिन कहते हैं, जो मिसाइल के लिए सबसे अच्छा, जो हमारा इंदिरा गांधी जी ने एग्रीमेंट किया था प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको टूटने के बाद 20 ईयर्स का एग्रीमेंट, 370 हटने से देश खतरे में आया. ये एक बात, लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो गया और चाइना गलवान तक आ गया. ये कितना रिस्की है, और हमारा सियाचिन वो अब हमारे हाथ में जाएगा या चाइना के हाथ में जाएगा? देखिए, अगर आप नक्शे पे कैजुअली सरसरी तौर पे नज़र मारिए, मैंने अपने दफ्तर में क्या किया है, बड़े बड़े नक्शे जो भी मिलते थे कमर्शियल, मैंने हर एक चीज़ के लगा रखे हैं. जैसे कि मैं देखता रहा हूँ दुनिया में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है. दैट इज़ माई जॉब. तो आप ये देखेंगे जो सियाचिन है, इट इज़ सैंडविच टुडे. बिकॉज एक तो चीन, जैसे मैंने आपसे कहा था, ये हमने जब हम माने नहीं, ये आपको ये थोड़ी सी बात और बताता हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ये जब हमने हमारे अमित शाह जी ने कहा कि अक्षय चिन इज़ द पार्ट ऑफ लद्दाख यूटी, उन्होंने ये बोला, और जब जिम्मेदारी ले ली शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की भी, शी जिनपिंग केम फॉर द सेकेंड इनफॉर्मल समिट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी इन चेन्नई महाबलीपुरम इन अक्टूबर 2019. और जो एक खास बात शी जिनपिंग ने रिक्वेस्ट करी प्राइम मिनिस्टर से, जिसको हमारी मीडिया ने बताया ही नहीं, जो कि हिंदू का जो कॉरेस्पॉन्डेंट था चाइना में, उसने लिखा, मैंने वहाँ से देखा. Wang Yi, foreign minister था, who was part of that second informal summit. Xi Jinping told Prime Minister Modi that if you want peace in South Asia, you have to look at the triangular peace. Peace between China, Pakistan and India. अच्छा, वो पीस कैसे हो सकती है? चाइना के साथ पीस का मतलब ये था हिंदुस्तान की कि आप वो अक्षय चिन्ह को वहाँ से हटाइए, और पाकिस्तान का मतलब ये था कि आप कश्मीर में बातचीत शुरू करिए. हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया. ओनली आफ्टर दैट अप्रैल 2020 में, because you did not take their request of Akshay Chin, consideration of Akshay Chin seriously at all, you dismissed it. They came in East Ladakh, and today they are sitting at most places close to their November 1959 line. तो आज क्या हुआ है, ईस्ट लद्दाख में वो बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, बीच में सियाचिन है. बट दिस इज नॉट ऑल. सियाचिन में हमारी ऑयल पाइपलाइंस हैं. हमारे जो लड़के हैं, दे आर सिटिंग एट पासेस लाइक सियाला, बिलाफोंडला, दे आर 15,000 फीट, उस पर बैठे हैं लड़के. तो वो केरोसिन इज द लाइफ लाइन, उसकी पूरी विजिबिलिटी चाइनीज को है. तो वो जिस दिन करेंगे कश्मीर की बात, पहले वहीं से शुरू होगी. I want to ask 3 questions. Sir, I'm really sorry to interrupt you, but just ask one question because there are many other people who want these to. are all related questions. I understand that, sir, but we'll come to that. एक क्वेश्चन ये है कि बेल्ट एंड रोड का जो काम, जो ग्वादर पोर्ट से कनेक्टेड है एक्चुअली, तो ग्वादर पोर्ट का तो काम बंद पड़ा हुआ है. एक क्वेश्चन वो है. दूसरा, इमरान खान वाज रिमूव्ड ऑन बिकॉज अमेरिकन्स वांटेड हिम टू बी रिमूव्ड. तो अमेरिकन्स का उनके ऊपर अभी भी छाया हुआ है अपने
तो to what extent Pakistan is aligned with America or and China actually? See, agar it comes to a situation where they have to take sides, on which side will they go actually? और तीसरा क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है कि ये जो यूएवीज का जो रशिया और उसमें जो इस्तेमाल हुआ है दोनों साइड से एक्चुअली, हैज़ इट चेंज? क्योंकि भाई सैटेलाइट का रोल उसमें कुछ कम हो गया है उसमें. अच्छा, Has it affected the satellite? I've got your questions. Okay. Now let me start with the first one very quickly. You know, perhaps you have missed a very important news. वो news ये है कि last year, I think it was November or October, the Chinese Prime Minister Li Qiang and the Pakistan Prime Minister, they inaugurated the Gwadar airport together. And perhaps you missed the news that they have laid a submarine cable from Gwadar to the east coast of Africa and that goes to Europe. कहने का मतलब ये है, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की, चाइना की डोमिनेंस साउथ एशिया में बढ़ गई है. कहने का मतलब ये है, अगर पाकिस्तान आज अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले, this is a big if, this is their internal problem. Baluchistan is not a military problem. If they can get their governance correct, and that is what the Chinese have been telling them for a long time, then their geopolitics, आप देखिए कहाँ जा रही है. आप वहाँ से खड़े होके ग्वादार से, you see the entire West Asia, what they call Middle East, you see the Central Asian republics, और कश्मीर जो है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ लैंडलॉक्ड है. तो इंडिया को तो वो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल अलग कर सकते हैं. दैट इज द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल है, मैं पॉलिटिकल सवालों के जवाब नहीं देता. थर्ड क्वेश्चन आपका है यूएवीज के ऊपर. देखिए, यूएवीज का अलग रोल है, सैटेलाइट का अलग रोल है. They are not aligned, you know. They are entirely different. In fact, the future of UAV is artificial intelligence in UAVs, where. अच्छा, आपको एक और बात बताऊं. पिछले हफ्ते President Putin has announced that we are now building a robotic army as a separate arm. तो मैंने एक किताब लिखी है, द लास्ट वॉर, दैट केम आउट इन 2022, वेयर आई हैव शोन अ सिनेरियो दैट हाउ द ह्यूमनॉइड रोबोट्स विल बी देयर इन द बैटलफील्ड, और ये सब मुकम्मल होगा इन द नेक्स्ट 2-3 years, बिकॉज द चाइनीज एंड द अमेरिकन्स टुडे आर लीडिंग इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स दैट अलॉन्ग विद ड्राइवरलेस कार्स. एंड द थर्ड थिंग जिसको आप सोच नहीं पाएंगे, Chinese have started a new thing called low earth economy. उसका मतलब ये है कि ज़मीन से लेके और 1 किलोमीटर की हाइट तक, now they are using that for economic purposes like robo taxis, and they are saying that by 2030 this will give them $20 billion. तो देखिए ये क्या होता है टेक्नोलॉजी में, पहले आपको आइडिया चाहिए होता है, इमेजिनेशन चाहिए होती है, देन यू वर्क ऑन दैट. दैट इज हाउ यू इनोवेट. चाइनीज आर डूइंग इट. So please. One question. Do you think suspension of Indus water? सर माइक चालू आहे, जवळ घेऊन बोला फक्त. हां, हाँ. तोंड. I have just one question. Here. Do you think suspension of Indus water treaty is a wrong decision? Sorry, do I think what? Suspension of Indus water treaty is a wrong decision, do you think? No, we haven't suspended it. We have put in abeyance. That basically means that the data will not be shared between the two countries, so they will not have the forewarning
बिकॉज देखिए पाकिस्तान इज़ अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कि वो ड्राउट होगा कि फ्लड्स आ जाएंगे वहाँ पर, इफ़ देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ डेटा, ऑफिशियल उनको नहीं बता रहे, हम नहीं बता रहे, प्लस वी आर थ्रेटनिंग देम कि हम अपने रिजर्वॉयर्स बना लेंगे, वो आप कुछ नहीं बनाएंगे बिकॉज दे टेक टाइम एंड इन्वेस्टमेंट्स, और तब तक चाइनीज़ विल कम इन। तो हमने बेसिकली जो किया है, इट डजंट गो वेल विद आवर प्रोफाइल ऑफ वांटिंग टू बिकम अ मेजर पावर। ये छोटे मोटे मुल्क होते हैं ना, इधर उधर कुछ कर दिया टाइप्स। व्हेन यू आर अ मेजर पावर यू हैव टू थिंक बिग। दैट्स माय थिंकिंग। Right. So Firoz, basically, I Firoz, think, if you can sit down because we are going live. Oh, sorry, and you're sorry, coming in sorry, front. sorry. Thank you. No, I thought, okay. No, I think Lavrov coming to India for the RIC is very, very important. India needs to come back on track on the BRICS issue. G7 is not our home actually. That's one part. The second thing, you mentioned a very important term called mowing the lawn. People here may not be aware, but that's an Israeli term for what they regularly do in Gaza and the West Bank. So this Israeli mentality that is coming into our government, that is also a reason for the loss that we faced in the current Sindoor operation. We think that Pakistan is some kind of a Gaza or something. It's not true. The third element, I think we need to go beyond this term of terrorism as a central problem. It is in for the world because we have ISIS and Al-Qaeda ruling in Syria, and those are the terrorists that America has brought into Syria. And the point being that I think it's high time that we realize that what they do in Kashmir to the Lashkar-e-Taibas and the whatever, we are doing with the same thing with the BLA and the Tehrik-e-Taliban over there. So it's a cross-border terrorism on both sides, and it's high time that the peace movement in India spoke on the issue. See, Firoz, that's all I I request you to ask question. No, that's all I like. Thank you. It doesn't matter. You know, I just want to make one clarification. See, Sergei Lavrov is not coming for RIC alone. In my assessment, he is coming for the coming visit of President Putin. President Putin is supposed to this year, because we have this agreement that there's a summit meeting, alternate, you know, in Moscow and India, in Delhi. So it's President Putin who's supposed to come here, and plus, of course, he's coming here to resolve other issues. In my estimation, the two big issues are that India needs more of S-400s, India needs more of BrahMos technology, and India needs to, and the Russians need to hear from the Indians about the de-dollarization move that is going on in BRICS. Because as I said, the BRICS summit is there on the 6th-7th July. So, isme already the proposal has gone from the Indian side, and the proposal is that we are open to the idea of the digital trade, because हमारा जो UPI है इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो अब वो कितना दूसरी कंट्रीज को एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा, that we will see. That is our proposal. That is the best that we are able to for the time being, unless we retract. I don't know, because there is still time to do that. So वो मुझे मालूम नहीं है. और जहाँ तक G7 का सवाल है, देखिए हम G7 के मेंबर नहीं हैं, एंड अगेन यहाँ पर एक हाइप बनाई जा रही है. ये एक G7 के बाद एक ऑब्जर्वर ग्रुप को बुलाया है जिसमें इंडिया इज नॉट अलोन. 2 other BRICS members are there. South Africa and Brazil also are invited. So, and in any case, as far as I am concerned, it is no feather in our cap. I'll tell you why. Because today G7 and the EU, they are torn. They are rudderless. उनको पता ही नहीं है वो क्या रहा है. तो why are we going there? B.N. Kumar. Hi, sir. With all the discussion that happened so far, I get the impression that it is not Operation Sindoor, but Operation Blunder rather. Was it too early for us to have agreed for the ceasefire? And once upon a time, we were looking at, the world was looking at China plus strategy. Is it not the right time for us to look at US plus strategy also? देखिए, as far as Operation Sindoor was concerned, neither side wanted to escalate, because both sided. हमारा जो था objective was only to show our people, this was in my assessment the objective of the government, कि हम अंदर घुस के मार सकते हैं.
and their objective was basically to learn the lessons. Not only have they learned the lessons, the Chinese also have learned the lesson, and I'm absolutely certain that their top military officers would be confabulating and doing a lot of briefing and debriefing and making the next strategy. तो दोनों का neither side wanted escalation, but दोनों साइड को आइडिया हो गया है कि अगली लड़ाई जो होनी है, अगर हम अपनी पॉलिसीज नहीं बदलते, वो तय है, तो वो कैसे लड़ी जाएगी वो समझ में आ गया है. अब जहाँ तक आपने प्लंडर की और दूसरी बातें करी वो पॉलिटिकल इश्यूज है, मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ.